So, of like many greetings to all of you. This is your course instructor Khushwant Fatnani. Let us start off with the session. Before we do, like always, let us join our hands. Let us close our eyes. One by one, all of us will start this class with some deep breathings. Bring a broad smile on your face. Count one. Take a deep breath in and a deep breath out. Breathe in once again and breathe out. Dear all, take a deep breath in and with the same smile, deep breath out. Let us pray. As I'm praying here, I hope, suggest, and request that you all pray at your own places. Loud. It is said that prayers have immense power to make sure that the impossible turns into the possible. अगर असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति देखना चाहते हो तो प्रार्थनाओं पर विश्वास करो. I request all of you to join your hands ताकि हम सभी प्रार्थना कर सकें. Close your eyes. Dear God, we are your children. We thank you for this life and all the gifts of life. Thank you for such good parents, family, health, wealth, and wisdom. Thank you for your favor on my education, career, and finances. Dear God, thank you that I am loved and I am blessed. Dear God, I thank you in advance that I have cleared JEE Advanced 2022, and dear God, I thank you that I have cleared NEET 2022 in advance. Thank you in advance. Thank you. Thank you. Let the smile stay there on the face. Take a deep breath in. And with a smile, deep breath out. All of us will now close slowly and steadily open our eyes. अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं. All right. बच्चा लोग आप लोग अपने हैंड डाउन कर सकते हैं. थैंक यू. So let us start off with the session. हम इस वक्त चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. I will take one of you for the revision, right? So let us take this time Kartikeya. Okay, so Kartikeya, one by one आपको रिविजन जो भी हमने लास्ट क्लास में किया है उसको एक बार सबके लिए रिवाइज करना है. Yes, Kartikeya, so I'll unmute you. Yes, bacha. Get going, bacha. Yes. Yes, sir. Class, once again I'll remind you all कि जब भी हम लोग क्लास में कोई भी डिस्कशन करेंगे
तो आप लोगों को एक चीज इंश्योर करनी है कि आपके पीछे बैकग्राउंड में कोई ज्यादा साउंड ना हो, वरना the other members in the meeting might find difficulty to listen to you, right? Okay. Yes, Karthikeya, start. Sir, we started with the uses of dimensions. There are three uses of dimensions: to derive or find a relation among different physical quantities. Karthikeya, I think there is some noise in your background. Can you please see and check and let me know if there is something, because something is rotating or something, some fan or maybe something like that, because of which there is a very heavy disturbance when you're speaking. So in case you can lower that, or maybe if you can remove that thing from your background and then again try speaking. Yes, Karthikeya. So yes, Bacha. Yes, Bacha, get going. Sir, we started with the uses of dimensions, and that we first we knew that to derive or find relation among different physical quantities. In that we did an example of force is equals to mass into acceleration. Then we did examples y is equals to sine kx minus wt. Okay. Then second point we did to check the correctness of the equation. Okay. ठीक है, फिर भी और भी हमने कुछ देखा था क्या? Yes, sir. To express derived quantities in terms of other derived quantities. So, आप लोगों में से दो बच्चों ने शायद डाउट पूछा था. कुशल had asked in the end कि सर जो फर्स्ट है और जो लास्ट वाला है वो दोनों एक नहीं होगा क्या? So मैंने कहा था हाँ आप कह सकते हो, but then at the same time उनमें डिफरेंस भी है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस बेसिस पे आपको ये बताया जा रहा है. सो फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन का एग्जांपल दो जो मैंने आपको बताया था व्हेन वी टुक द लास्ट यूसेज ऑफ डायमेंशन एक्सप्रेसिंग in terms of या expression in terms of derived quantities. याद करो मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा आपको. So and so quantities considered as fundamental. Now derive the relation between. ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था कार्तिकेय? Yes बच्चा बोलो. Yes sir. Right? Example दो, क्या था क्वेश्चन बताओ सबको, याद दिलाओ. Yes sir. Sir, speed v, acceleration a, and force f, if these are considered as fundamental units, the dimension of Young's modulus will be. So we were told कि speed, acceleration, and third one was force, right? Yes sir. हमने मान लिया, अभी तक तो हम ऐसा मान के चलते थे कि मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. अगर हमने ये मान लिया कि स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो भाई यंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा? मतलब आपको यंग्स मॉड्यूलस को बताना है इन टर्म्स ऑफ velocity, acceleration and force, right? This is how we are understanding the expression of one variable in terms of other variables, right? Which are actually derived quantities, right? जबकि यहाँ पर the difference क्या है? देखो यहाँ पर हम force को mass के terms में लेकर आ रहे हैं, या फिर हम लिख रहे हैं time is equal to 2 pi under root of L by G, right? तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले केस में हम जो भी फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, दैट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज व्हिच आर वेरी फंडामेंटल, वेयर एज लास्ट वाले में हमने किसी दूसरी क्वांटिटी को फंडामेंटल मान लिया और उसके बाद फिर उनके बीच में क्या किया, रिलेशन लेकर आए. लास्ट वाले में ये फर्क है, राइट? लास्ट वाले में हमने ऑलरेडी कुछ क्वांटिटीज को, जैसे अभी इस केस में हमने क्या किया, हमने यंग्स मॉड्यूलस को मान लिया इट इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. तो अब भाई उसका पावर क्या होगा, राइट? सो हमारा ये अब तक का एजेंडा था, राइट? कि हमने इस तरह से अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को देखा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, राइट? उसके पहली वाली क्लास में आई थिंक तेजस हैड रिवाइज्ड फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? कि हमने कुछ चीजें देखी जैसे यूनिट और उसका डायमेंशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट? और उनके बीच में एक हाइपरबोलिक रिलेशनशिप होता है इस कुछ इस तरह से, right? If I plot n here and maybe you over here, and I can say
N1 U1 is equal to N2 U2 and so on, right? तो हमने इस तरह के कुछ खास बातें देखी थी. We also understood how does a vernier calipers work, right? हमने एक वर्नियर कैलिपर की वर्किंग देखा था, उसका डायग्राम देखा था, right? आई होप आप सबने प्रैक्टिस किया है कि कैसे लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर निकाला जाता है, राइट? आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसको कहते हैं एरर्स. फिर हम एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स के जरिए हाउ डू यू टेक द रीडिंग. अभी तो हमने वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालना सीखा है, राइट? उसी तरह से वी आर सीइंग कि भाई स्क्रू गेज के लिए हाउ डू यू फाइंड आउट रीडिंग, राइट? इसमें हम एक और छोटा सा टॉपिक देखेंगे, जीरो एरर. क्या देखेंगे? जीरो एरर. क्या होता है जीरो एरर, और जीरो एरर कंसिडर करने के बाद करेक्टेड रीडिंग क्या होती है, राइट? करेक्टेड रीडिंग क्या होती है. ऑल्दो आप लोग अपने स्कूल के प्रैक्टिकल्स में ये चीजें सीखते हैं, राइट? बट देन इट इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इससे सवाल हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में. यू गेट से अराउंड 1 to 2 questions every year might come from this chapter, right? So this has a coverage of, this chapter might have coverage of from 1 to 2 questions every year when you take your JEE as well as NEET examinations, right? एक से दो क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, right? So now let us begin with the same. So class, जिन जिन लोगों ने मैंने जो भी स्क्रीन पे लिखा है उसको अपने पास लिख लिया है, हैंड रेज करो. Whatever I have written on the screen right now, कितने बच्चों ने इसको अभी लिखा है in front of me? मतलब पुरानी वाली चीजें नहीं, अभी जो बोर्ड पे लिखा है, you have to write this. If in case you have written, please jot this down. Yes, class. And once you have jotted it down, raise your hand. Okay, meanwhile Rahul has some question to ask. Yes Rahul bacha, I'll unmute you bacha, 1 minute. तो लास्ट क्लासेस से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बट पहले जो अभी स्क्रीन पर लिखा है इसको लिख लो एंड रेज योर हैंड. Yeah, I'll wait first for everyone to raise their hands until the point they have written everything that I've written on the board. Very important. Class, please raise your hand as soon as you're done writing whatever is written on the board. Yes. बच्चों लोग, आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है कि अगर आपकी क्लास 1 बजे है तो आपको उसके 10 मिनट पहले लॉग इन करना है. अगर आपकी क्लास 1:15 पे है तो आपको उसकी भी 10 मिनट्स पहले लॉग इन करना है. स्टे देयर इन द क्लास इटसेल्फ, है ना, और रिविजन कर लो जो भी लास्ट क्लास में हुआ है उसका, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब 1:15 की क्लास है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको मैसेज करूं, कहूं कि बच्चा ज्वाइन करो, ये नहीं होना चाहिए, है ना. 10 मिनट्स पहले लॉग इन करके बैठ जाना है और उतनी देर में अपना जो भी क्लास में लास्ट क्लास में हुआ है उसका रिवीजन कर लेना है. यस, सो लेट मी सी इफ यू हैव रेज्ड हैंड्स एवरीवन. ओके, सो आई थिंक आयुष इज डन, राहुल का हो गया, वी हैव अमीश इज आल्सो डन, तेजस ने भी लिख लिया, कुशल, दिशा इज आल्सो डन, चैतन्य इज आल्सो डन, कार्तिकेय, वीरज, ओके, कार्तिकेय, वीरज, चैतन्य, Disha, and we have Ayush, Rahul, Amish, Mahesh, Tejas. Kushal बच्चा हो गया क्या? In case you have written it down, let me know. या बच्चा, please raise your hand in case you're done. Okay, great. All right, ठीक है. Class, you can bring your hands down. Thank you. So let us start off with first clearance of any queries that you have.
यस राहुल बच्चा बोलो, मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बच्चा बोलो। सर आपने जो एक ग्राफ में बताया था वो हाइपरबोला के बारे में, हाँ वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है क्या? नहीं, एन और यू में जब तक रिलेशन इस तरह से होगा और कोई भी दो वेरिएबल्स जब इस तरह से जुड़े होते हैं, x into y is a constant, let's say k naught, then you call this relation between y and x as inversely proportional, and such a relation is called hyperbolic relation. तो इसे हाइपरबोला कहते हैं, इस ग्राफ को ही हाइपरबोला कहते हैं। और ऐसे तो कोई भी दो क्वांटिटीज में कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है न्यूमेरिक वैल्यू की और उसके यूनिट की। जब आप बहुत सारे कन्वर्जन करते हो, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हो, तो इसके कहने का क्या मतलब है, जैसे इसके कहने का मतलब है जब आप लिखते हो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो राहुल मुझे एक बात बताओ कि सेंटीमीटर और मीटर में से बड़ा यूनिट कौन सा है? मीटर। मीटर। यूनिट बड़ा मीटर है, लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है? राहुल अनम्यूटेड ही रहो, है ना, 2 मिनट, डू नॉट म्यूट योरसेल्फ। देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि मैंने राइट 1 सेंटीमीटर, लेट्स से आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, 1 मिनट। सो बच्चा लोग आपको ना डोंट गेट स्टक अप इन दी फॉर्मूलाज, उसका इंटरप्रिटेशन समझो। फॉर्मूला है अगर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसका क्या मतलब है? याद करो मैंने ऐसा सिखाया था, सपोज आई एम टेकिंग 100 centimeters, that is equal to 1 meters. तो अब मुझे यहां देखकर राहुल ये बताओ कि सेंटीमीटर और मीटर में से बड़ा यूनिट कौन सा है? यूनिट में किसकी वैल्यू बड़ी है? मीटर। मीटर की, राइट? तो उसके लिए यू बड़ा है, इसका मतलब यू किसके लिए छोटा हो गया? सेंटीमीटर के लिए। हाँ यार, नाउ न्यूमेरिक वैल्यू देखो किसकी बड़ी है, सेंटीमीटर वाली या मीटर वाली? सेंटीमीटर वाली। सेंटीमीटर वाली न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है, देखो, और यहाँ वाली न्यूमेरिक वैल्यू छोटी है। अब देखो दोनों को रिलेशन देखो, जब n छोटा तो u बड़ा, और यहाँ पर जब n बड़ा तो u छोटा। क्लियर हो रहा है? Therefore, yes, n is inversely proportional to u. अब क्लियर हो रहा है कि मैंने n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u क्यों लिखा है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जब भी आप कभी एक बड़ा यूनिट यूज करते हैं तो उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो अपने आप छोटी हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखूं 1 kg, है ना, इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, लिख सकते हैं ऐसा? अब बताओ केजी और ग्राम्स में से बड़ा यूनिट कौन सा है? केजी। केजी, तो इसका यूनिट बड़ा है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू किसकी बड़ी है? ग्राम की, है ना? तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू, यहां पर यूनिट छोटा, न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी, जबकि ऑन द अदर साइड यूनिट बड़ा और न्यूमेरिक वैल्यू कैसी? छोटी। हुआ क्लियर अब राहुल? हाँ सर, इसका मतलब ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, कर्व भी रहेगा ना? कैसे बनेगा खुद ही सोचो। कोई एक वैल्यू बड़ी हो, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से होता है, सपोज अपन एक काफी आइडियल स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं, तो मेरा मतलब है y इज इक्वल टू mx, c भी हटा देते हैं, हमने किया ये, है ना, क्लास में। तो सपोज ये वाली लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी राहुल बोलो? y इज इक्वल टू mx होगी, हाँ या ना? इफ दिस इज x एक्सिस, कैसे हो सकता है कि अगर यूनिट भी बढ़ता जाए, मतलब एक जगह u ले लो, यहाँ n ले लो, यूनिट बढ़ता जाएगा, इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब समझो, सिर्फ ग्राफ को देखकर ड्राइंग पे मत फिदा हो जाओ, उसका मतलब समझो। उसका मतलब ये है कि अगर x बढ़ता जा रहा है तो देखो उसके साथ u भी क्या होता जा रहा है, या u बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ n भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये देख पा रहे हो इन द ग्राफ? इज इट एविडेंट? सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है as x increases, y also increases, and in this case this happens at a uniform rate. इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम लोग मैथमेटिकल टूल्स आगे कंटिन्यू करते हैं ना, बिकॉज वी हैव डन मैथमेटिकल टूल्स अभी थोड़ा आधा, इसके बाद हम कुछ और भी पढ़ेंगे, राइट, आफ्टर दिस चैप्टर। तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब है। मैंने क्या कहा, दोबारा दोहराओ तो, जब x बढ़ रहा है
तो स्ट्रेट तो लाइन y में भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखो, अब यहाँ मैं ना अलग अलग पॉइंट्स बनाता हूँ इस ग्राफ पे, n वर्सेस u का जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया, तो ये वाला ग्राफ वोंट होल्ड, जो हमने नीचे बनाया, दिस ग्राफ वोंट होल्ड ट्रू फॉर n वर्सेस u। why? बिकॉज हियर n and u are both increasing, जबकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या राहुल? n और u एक साथ दोनों इंक्रीज कर सकते हैं क्या? नो सर। नो नो राइट, क्योंकि देखो अगर तुमने यूनिट कम करना चाहा तो अपने आप न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, और वहीं इसका उल्टा भी होता है, अगर तुम यूनिट बढ़ाना चाहोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम। क्लियर हो रही है बात? यस सर। है ना? अब यहाँ देखो, सपोज वी हैव ए, बी, सी और ये डी, चार अलग अलग पॉइंट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ किस वाले पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है? सपोज एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ है ये, तो डी के लिए, हाँ या ना? डी यस सर। सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके लिए तुम वाई देखोगे तो कैसा है? सबसे कम है कि नहीं? ए, हाँ सर कम है। कम है। और वहीं ए के लिए देखो, सीट फॉर ए, ए के लिए क्या हो रहा है? एक्स कैसा है? सबसे कम, इतना सा एक्स है, राइट। लेकिन वाई देखो कैसा है? सबसे ज्यादा, हाँ या ना? यस सर। बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पर हाँ एक्स सर। और वाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब एक क्वांटिटी बड़ी तो दूसरी छोटी, पहली वाली छोटी तो दूसरी बड़ी। क्लियर हो रही है बात बच्चा? बड़ी। यस सर। अच्छे से? यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, ओके बच्चा लोग, ओके ग्रेट, थैंक यू राहुल। सो क्लास, लेट us then proceed to next part of today's work, that is units and the part units and measurement में, where we are talking about significant figures. जनरली ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको क्लासेस में ऐसे ही कह दिया जाता है कि आप लोग कर लीजिए, आपसे बन जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि टॉपिक बहुत आसान है, और सच में है भी। देखो, इनफैक्ट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि फिजिक्स ही आसान है। अगर आप मानने लगोगे ना बच्चा लोग कि फिजिक्स आसान है, तो अपने आप फिजिक्स आपके लिए आसान बन जाएगी। वन हु बिलीव्स विल बी द वन हु कैन डू इट, right? And this is not me saying it, this is scientists, great visionaries, people like Abdul Kalam saying it, right? The ex-president of our, late ex-president of our country, कि मानना पड़ेगा कि subject is easy, ठीक है। So अभी हम पढ़ रहे हैं significant figures के बारे में। क्या होते हैं significant figures, है ना? तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी, है ना? तो सबसे पहले तो अलग अलग तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं, राइट? वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कहे जाते हैं कि भाई रियल नंबर्स, मतलब ऐसे सम प्योर नंबर्स। प्योर नंबर मतलब जैसे मैंने आपसे कह दिया 2, या मैंने आपसे कह दिया 100, बस, ना कोई और ना छोड़, ये नहीं पता 100 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर, 2 माइक्रोमीटर या 2 केजीज, कुछ नहीं पता, बस है समथिंग 2, समथिंग 100। ऐसे नंबर्स में हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ना आपके पास कुछ रूल्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, और उन रूल्स को आपको फॉलो करना है इन ऑर्डर टू, you have to follow these rules in order to solve your questions. अगर ये रूल्स फॉलो करोगे तो सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इंफिनिटी। कैसे होते हैं इंफिनिटी? ये है आपका रूल नंबर 1, लिख लो अपने पास क्लास। 200, ऐसा कोई भी प्योर नंबर हो जिसमें कोई यूनिट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कोई यूनिट नहीं है, तो उसमें प्योर नंबर कितने होते हैं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इंफिनिटी। लिख लो एक बार, एवरीवन राइट इट डाउन। यस क्लास, राइट इट डाउन। चलो सभी लोग, राइट, ठीक है। अब अगला रूल समझो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि अब मैं किसी रीडिंग की बात करता हूं क्लास, ध्यान से सुनना, है ना? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रीडिंग।
रीडिंग का क्या मतलब है? सपोज मैं किसी मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई एक इंस्ट्रूमेंट है ना, आपने उसके जरिए कोई मेजरमेंट ली है, आप अलग अलग चीजें मेजर कर सकते हो, एंगल मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, so we can have angle, weight, right, time, right, so many things, distance, अलग अलग चीजें हम मेजर कर सकते हैं, ये सारी क्वांटिटीज मेजरेबल है ना। तो सपोज हमने कोई मेजरमेंट किया है ना, मेजरमेंट किया, सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं, और मेजरमेंट आया, सपोज आपके पास एक लेट्स से यू हैव अ पेंसिल, ठीक है, और आपने उस पेंसिल का मेजरमेंट किया, लेट्स से उसकी लेंथ आई आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, कितनी आई? 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग आपके पास एक पेंसिल है। अब ये क्यों एक रीडिंग है? क्योंकि इस रीडिंग में दोनों चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज तो इसके पास, या पहला पार्ट इसके पास जो है, दैट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। लिखो सब लोग, लिखेंगे इसको सब लोग, ठीक है। याद है मैंने बताया था कि हम जो भी ये क्लास में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये मूवी की तरह देखना है, नो, उससे एडवांटेज नहीं होगा। आपका फायदा कब होगा? जब जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन। क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन। मतलब जब आपको कोई फैकल्टी पढ़ाते हैं, देन ही यूजेस सम डायग्राम्स, फिगर्स टू एक्सप्लेन दोस कॉन्सेप्ट्स टू यू। तो आप लोगों को इंश्योर करना है, whenever I teach you something, you will jot it down in your copies, right? तो इनको अपनी कॉपी में लिखते जाओ। Here 10.5 सेंटीमीटर्स में 10.5 is a numeric value, whereas centimeter is a unit। लिख लो, लिख लो, सेंटीमीटर is a unit। अब ध्यान से सुनना, ये जो होता है ना सबसे आखिरी वाला डिजिट, ये जो सबसे आखिरी वाला डिजिट होता है ना, इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? अनसर्टेन डिजिट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द रीडिंग। लास्ट डिजिट ऑफ द रीडिंग या लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट। लिख लो सब लोग इसको। अनसर्टेन मतलब आप सर्टेन नहीं हो उसके बारे में। तो लेट्स से ओके, तो अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अब आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल एक प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। अब इस प्रोट्रैक्टर में कोई बता सकता है क्या मुझे? भले इसमें रीडिंग्स थोड़ी अनक्लियर होगी, राइट, आई ओके वेट, सो आई maybe try to take a scale for all of you, just give me a second, yeah, देखो, सो आई टेक अ स्केल, राइट। अब इस स्केल को ध्यान से देखो, है ना, हम लोग, ये वही स्केल है जो अपन घर पे यूज करते हैं, राइट, और इन योर ज्योमेट्री बॉक्सेस यू हैव द स्केल। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या होता है जो आप ले सकते हो क्लास? आई टेक द आंसर फ्रॉम चैतन्य। यस चैतन्य बच्चा बोलो। ये एक रूरल है, राइट, एक रूरल में सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होती है जो आप ले सकते हैं? यस चैतन्य बोलो। सर 1 मिलीमीटर। यस 1 मिलीमीटर। तो अब देखना, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाता हूँ, राइट। So let's say I'm talking about a scale such that, देखेंगे सब लोग, ठीक है, हमारे पास एक स्केल है। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट the entire diagram, लेकिन just some part of it to illustrate the figure better. Suppose this is 0, the initial point, right, and suppose this is 1 centimeter. इसके बीच में हमारे पास
10 divisions हैं, right? Let's make them 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So I have, see, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. ठीक है, तो हमारे पास 9 lines हैं between 0 and 1 and each division is representing 1/10 of a centimeter. I'm repeating, class. Each division, so this entire length is 1 centimeter, whereas this one division, इसको बोलते हैं एक डिवीजन. ये एक डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैंने इसको 10 हिस्सों में तोड़ दिया है. तो वन डिवीजन इज टेलिंग मी अबाउट 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, राइट? और इसको अपन कह सकते हैं 1 मिलीमीटर. वेरी गुड, एक्सीलेंट. अब देखो क्लास कि अब हमारे पास ये वाला हिस्सा इज 1 mm, राइट? तो अब मैं किसी भी वैल्यू किया या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब रीडिंग लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या आ सकता है? क्या मेरा आंसर 1 mm से छोटे में आ सकता है क्या? देखो, इफ समथिंग कम्स, सपोज आई हैव, लेट्स से आई हैव अ चॉकलेट, राइट, जिसका आपने यहां से मेजरमेंट लिया. सो दिस आंसर विल बी नाउ गिवन बाय तेजस. सो आई विल अनम्यूट यू बच्चा. So yeah, so try telling this to me, right? कि आपके पास यहां से I have one object, ठीक है, इसको मैंने यहाँ रखा है और वो actually exactly one न, देखो अब यहाँ देखना, ठीक है, तो I'll number them, right? Number the divisions. Let's say the division is ये हुआ first division, that is 0.1 centimeter, second division, third division, fourth और ये fifth division. अब देखो ध्यान से, जो मैंने आपके पास फिगर बनाया है वो कहीं फोर्थ और फिफ्थ डिवीजन के बीच में आ रहा है. दिख रहा है क्या आपको तेजस? इट इज कमिंग बिटवीन दीज टू, 4 and 5. कैन यू सी दिस? सो आई हैव अनम्यूटेड यू. यस बच्चा, यस सर. है ना? तो अब हमारा सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो इसके लिए रीडिंग कैसे लोगे बच्चा? क्या बोल सकते हो? 4.5, 4.1, किस जगह पर आ रहा है वो? जैसे अभी मैं अगर बोलूं तो ये जो स्केल है, सपोज इसका मेजरमेंट जो आता है वो x है ना? तो मैं क्या कह सकता हूं देखकर इसको कि x और द मेजरमेंट इज समवेयर बिटवीन 0.4 सेंटीमीटर टू 0.5 सेंटीमीटर. हाँ या ना बच्चा? यस सर. लेकिन क्या तुम एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हो कि 0.41 है, कि 0.42 है, कि 0.43 है, या फिर 0.4998 है? ऐसे कुछ बोल सकते हो क्या? नो सर. क्यों नहीं बोल सकते, ये बताओ. क्योंकि उसकी कोई रीडिंग ही नहीं है, तो हम खुद से कैसे एस्टिमेट करें? एक बार दोबारा बोलो जो आपने अभी बोला, एक बार इसको रिपीट करो. क्योंकि उसकी कोई रीडिंग नहीं है उससे छोटे की, यानी मिलीमीटर के बीच में, है ना? मिलीमीटर तो के बीच में कोई रीडिंग नहीं है. हाँ 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 बोलो. तो वही, तो हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? हाँ, तो हम एस्टिमेट कैसे करेंगे? इसलिए कभी भी डियर ऑल, कभी भी अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट की जब भी हम कभी रीडिंग लेते हैं ना, तो ये जो लास्ट वेरिएबल आता है या जो लास्ट नंबर आता है इस रीडिंग में, लेट्स से यहाँ पर आ रहा था नंबर 10.5 सेंटीमीटर, तो जरूरी नहीं है कि ये 5 हो सकता है 4 रहा हो, लेकिन देखने वाले ने अपनी नजर से क्या लिख दिया? 5. हो सकता है 6 रहा हो, 0.6 सेंटीमीटर, मतलब 10.6 सेंटीमीटर, लेकिन देखने वाले ने क्या लिख दिया? 10.5. कहने का मतलब है whenever I report something as 10.5, इट मींस कि आखिरी नंबर में ना गड़बड़ हो सकती है, आखिरी नंबर में कोई झोल हो सकता है. ये 10.4 भी हो सकता है और 10.6 भी हो सकता है. हमारे पास अब डिस्क्रिशन होना चाहिए ये तय करने का कि क्या मैं आंसर 10.4 लिखूं या 10.6 लिखूं. यहीं से जन्म हुआ इस शब्दावली का या इस टर्म का, जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब हम मान के चलते हैं कि आखिरी वाली रीडिंग सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट. क्या बोलते हैं क्लास? अनसर्टेन
digit. I hope it is clear now to everyone कि last को हम uncertain digit क्यों कहते हैं, right? Last को हम uncertain digit क्यों कहते हैं? इसको मुझे खत्म करने दो. आप लोग के पास जो जो डाउट्स आते हैं ना उसको अपनी कॉपी में लिख लो एक छोटे वर्ड में, उसके बाद एक साथ पूछना, ठीक है? Right? So now let us say, let us come to next point, right? That significant figures में आपके पास कुछ rules हैं, right? So class, मैंने आप लोगों को कुछ rules send किए हैं on the group. In case you have not seen them, open it again. I'll send the document to you all once again on the group, right? इसको access करो. So yeah. So class, I'm sending this again on the group, right? इसको एक बार access करेंगे सब लोग. Yeah. So I have sent the document. It must be opening. Just a minute. So there are some rules of significant figures. है ना? ये आपकी उन बुक्स में भी रिकमेंड, जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स बताई हैं, राइट? उन बुक्स में भी हैं, प्लस मैंने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं, राइट? जस्ट अ सेकंड. So I've already sent this on the group and now I'm sending it again. Yeah. So I think it must have reached you all. Kindly open the group and check this. Everyone, open the group and check this. Kushal, Rahul, Amish, Ayush, kindly open the group and check it. There are some rules of significant figures in the document which I have sent you. So on page number 3 of the document, have a look. On page number 3 of that document, आपके पास कुछ rules हैं. Yes. जिसने वो खोल लिया है, just raise your hand. जिसने वो डॉक्यूमेंट खोल लिया है, प्लीज रेज योर हैंड. यस, वो चलो. Kushal, is the document accessible at your end? In case yes, please open it and raise your hand as soon as you are done. Yes, Kushal. And in case there is any difficulty, you may message me. Yes, Bacha. Okay, okay. Kushal, in case you don't have the mobile, no worries. I'll be writing the rules here in a very short gist. एक बार उसको देख लीजिएगा याद से after the class. No worries, बच्चा, कोई बात नहीं. ठीक है. तो सबसे पहला रूल होता है क्लास, that all zeros, all non-zero numbers, all non-zero numbers all non-zero numbers. Okay, great. In case Kushal, you have the printout, right? Please keep the printout ready. You have all non-zero numbers are significant. Are significant. सारे non-zero numbers कैसे होते हैं? Significant. So suppose if I write a number 6 point or 8.068. अब let us take one of you, है ना? So let us take दिशा. दिशा बच्चा, बताओ यहाँ पर कितने non-zero numbers हैं? Yes. कौन कितने non-zero numbers हैं? गिनो. ये 1, फिर गिनो 2, फिर कौन सा ये 3. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ. कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? 1. एक जीरो है. और कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? 3. नॉन जीरो डिजिट्स हैं. 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, राइट? तो ये तीनों के तीनों अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है? पढ़ो एक बार रूल, जोर से पढ़ो दिशा.
All non-zero number are significant. यस, इसका क्या मतलब हुआ दिशा? हम्म, कि जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं वो सब के सब कैसे हैं एक्सेप्ट 0, वो सब कैसे हैं? सिग्निफिकेंट। मतलब 8, ये वाला 6 और ये वाला 8, तीनों के तीनों कैसे हैं? सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? significant. राइट। हाँ, यहाँ पर अगर मैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को SF से डिनोट करता हूँ तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए? 3. 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। ग्रेट, गुड, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब मैं नंबर दे रहा हूं, देखना ध्यान से। 20258916। अब गिन के बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और यहाँ पर ना सेंटीमीटर्स लिखा है और यहाँ केजी लिखा है, मतलब ये कोई मेजरमेंट है। हाँ, गिनो दिशा। आई काउंट इट, राइट। ये देखो 1 3 4 5 6 और ये 7 नॉन जीरो डिजिट्स हैं यहाँ पर। हाँ या ना बच्चा? हाँ, जीरोस कितने हैं? 1. एक जीरो है और 7 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। हाँ या ना? तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन हाँ, कितने हो गए? 7. पक्का? significant. पक्का? हाँ, हाँ, पक्का. लेकिन अभी ना हम रूल पे उतना टिकते नहीं है। अभी के लिए हम एक दूसरा रूल देखते हैं, उसके बाद इस नियम पे आते हैं। दूसरा रूल पढ़ो दिशा, फ्रॉम द बुक। दूसरा रूल पढ़ो, ऑल जीरोस पढ़ो। All zeros between two non-zero digits are significant figures. अरे ये रूल तो ये भी कहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट है, ये कहता है, दोबारा पढ़ो एक बार, ऑल जीरोस। यस, गो अहेड। All zeros between two non-zero digits are significant figures. बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो मतलब अगर कोई एक जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, जैसे 6 और 8, जैसे 1 और 3, हाँ या ना? तो वो जीरो कैसा हो जाएगा? वो जीरो कैसा हो जाएगा? बिकम, आगे पढ़ो, सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? राइट। इसका मतलब हो गया कि भले हमारे पास इस वाले फिगर में या फर्स्ट वाले नंबर में हमारे पास जीरो था, लेकिन दैट जीरो वाज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। कौन कौन से नॉन जीरो डिजिट्स है पहले केस में? बताओ, जीरो के आसपास 8 और 6. 8 और 6, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। तो 8 और 6 के आने की वजह से ये जीरो कैसा हो गया? सिग्निफिकेंट। ये जीरो कैसा हो गया? सिग्निफिकेंट। हाँ या ना बच्चा? राइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? अब बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4. 4। वेरी गुड। यहाँ बताओ इस वाले फिगर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 8. 8 क्यों? 8 क्यों? ये वाला तो जीरो है, यहाँ तो जीरो है, तो फिर 8 क्यों हुआ? दो non-zero digit के बीच में है इसलिए. हाँ, बिकॉज ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसीलिए ये जीरो भी कैसा हो गया? सिग्निफिकेंट। इसीलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए दिशा बच्चा? 8. बोलो 8। वेरी गुड, 8. वेरी गुड, एक्सेलेंट बच्चा। अब अगला रूल लेते हैं। थैंक यू दिशा। वील टेक वन मोर पर्सन नाउ। लेट अस टेक वन पर्सन। आप लोगों के जो डाउट्स है ना बच्चा लोग, जो डाउट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसको प्लीज एक कीवर्ड के फॉर्म में अपने लेक्चर कॉपीज में नोट करके लिखो। एक साथ में वील टेक द डाउट्स, राइट? एक साथ में अभी आई वुड विश कि हम लोग एक फ्लो में चलें, राइट? और जैसे ही आई स्टॉप स्पीकिंग तब आप लोग बोल सकते हो, ठीक है? सो I'll give you that time of asking the questions. तब तक अपने पास उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में कीवर्ड के फॉर्म में लिख लो, ठीक है? अगला नियम। सो लेट अस टेक राहुल दिस टाइम। सो सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट? हैंड डाउन कर लीजिए सभी लोग। यस। सो राहुल, आई एम अनम्यूटिंग यू, राइट? इस क्वेश्चन, अगला थर्ड पॉइंट पढ़ो। When there is no decimal point, the final zeros are not counted as significant figures. For example, एक मिनट यहाँ रुकते हैं, दोबारा बोलो इसको। When
when there is no decimal point, when the there is final zeros. no decimal point. तो मतलब अगर हम ऐसे रीडिंग की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1000 सेंटीमीटर्स या 600 मीटर्स या फिर 171000 kgs या फिर 93 एंड लेट्स से 930 mm, कुछ हमने वैल्यू ले ली है ना, और एक और वैल्यू ले लेते हैं जैसे 690500 सेकेंड्स। हमने कुछ रीडिंग्स ले लिया, ठीक है। इसमें बताओ कोई डेसिबल पॉइंट है क्या राहुल? No sir, नो, no decimal point. no decimal point. So now when there is no decimal point, आगे पढ़ो, the zeros in the The end. zeros are not counted as significant figures. कौन से zeros? The zeros in the end, the final zeros, ऐसे ही लिखा है। फाइनल जीरोस मतलब जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर, उसके राइट में जो जीरोस उसको फाइनल जीरोस बोलते हैं। तो जीरोस इन द एंड आर कैसे होते हैं वो, सिग्निफिकेंट कि नॉन सिग्निफिकेंट राहुल? Sir, as significant figures, not counted as significant. Not counted as significant figures, that is important. अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया राहुल? अच्छा, अब मुझे ये पहली रीडिंग के बारे में बताओ, इसमें कितने नंबर्स हैं टोटल? टोटल कितने न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं बताओ? 4. 4। अच्छा, इसमें डेसिमल पॉइंट है कि नहीं? No. है ना, तो No सबसे decimal पहले point. 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, राइट, और कोई डेसिमल पॉइंट नहीं Yes. है, नो डीपी, नो डेसिमल पॉइंट। अच्छा, बताओ जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो आखिरी वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? No sir, no. There are no Not significant. राइट, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं और ये वाला भी नहीं। अच्छा, 1 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? Yes sir, it is significant. क्यों सिग्निफिकेंट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हमने पहला रूल क्या पढ़ा है, दोबारा पढ़ो। All non-zero numeric are significant. All non-zero numbers are significant, क्योंकि यहाँ पर 1 नॉन जीरो है इसीलिए कैसा हो गया, सिग्निफिकेंट। जबकि बाकी के जो जीरोस हैं वो फाइनल जीरोस हैं। कैसे जीरोस है राहुल? Final zeros. फाइनल जीरोस है, और खासकर कब है, जब कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसीलिए वो कैसे हो गए, नॉन सिग्निफिकेंट। कैसे हो गए राहुल? नॉन सिग्निफिकेंट। Non-significant. राइट। अच्छा, अब बाकी के लिए एक एक करके बताओ और रीजन भी बताना। हाँ, यस, गेट गोइंग राहुल। In second, 6 is significant while 00 is non-significant. ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट हैं, नॉट Yes sir. सिग्निफिकेंट। क्यों नॉट सिग्निफिकेंट फिगर? क्यों? Final zeros are Fine. there and there is no decimal. राइट। अच्छा, ये 6 सिग्निफिकेंट है या नहीं है? So it is significant. हाँ, तो पहले वाला जो फिगर दिया था 1000 सेंटीमीटर, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स Yes, sir. आएंगे राहुल टोटल? Sir, only one. One. Only one. सेकेंड वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे राहुल? Only one. That is 6. ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले के लिए बोलो, अब नेक्स्ट वाले के लिए बोलो। So in this पहले there तो would be पहले तो जीरोस Four. काउंट करो, कितने Four zeros हैं significant. इसमें? कितने जीरोस हैं इसमें? three zeros are है there. ना? क्या तीनों के तीनों फाइनल है या एक बीच में बाकी दो फाइनल हैं? So only 2 are final. Last 2 है ना, तो 2 zeros are in the end whereas 1 zero in is between। in the middle. ऐसे लिख सकते हैं, है ना? Yes sir. बीच में between 2 नॉन जीरो डिजिट्स, हाँ या ना? Yes sir. है ना, तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अच्छा, अब इसके आगे बोलो, इसमें कैसे करोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट? कैसे करोगे? काउंट करो। 6, 9, 0, 5 are significant. 6, 9, 5, ये वाला जीरो 0, 5. सिग्निफिकेंट होगा? ये जीरो होगा क्या सिग्निफिकेंट? Yes sir. क्यों 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 जीरो? Yes sir. Because it is between two non-significant zeros. Non-zero significant. Because this zero between 9 and 5 is between two non-zero digits, इसीलिए कैसा हो गया, significant figures। और अच्छा देखो, ये जो आखिरी वाले जीरो हैं इनका क्या, इनको भी मैं मान लूं significant figure? No sir, because it are final zeros. हाँ, because ये पॉइंट तो ये कहता है कि जो भी फाइनल जीरोस होते हैं इन अ नॉन डेसिमल नंबर, वो कैसे हो जाते हैं,
वो कैसे हो जाते हैं बच्चा? सिग्निफिकेंट, हाँ या ना? नॉन सिग्निफिकेंट, हाँ या ना? नॉन सिग्निफिकेंट, हाँ। यस सर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए फिर इस नंबर में? 4, 4। कौन कौन से? 6, 9, 6, 0, 9, 0, 5, 5 और 0 5, इसलिए क्योंकि वो दो नॉन जीरो के बीच में, राइट? यस सर। हाँ, अब फर्स्ट वाले इस वाले के लिए बोलो 1 सर तो 7। सर तो इसमें हमें इंडिकेट करना पड़ेगा क्या कौन सा 0? वो अपने आप तुम्हें आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हारे पास एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ रूल बेस्ड आ सकते हैं, या फिर कई बार मतलब तुम लोगों को ये रूल्स एकदम याद होने चाहिए, बेसिकली दैट इज द की। ये रूल्स एकदम कंठस्थ होने चाहिए और वो तभी होंगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में हमें लिखना पड़ेगा क्या कि कौन सा 0 है नॉन डिपेंड करता है, सिग्निफिकेंट? जब स्कूल के एग्जाम दोगे ना तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो बताना पड़ेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बताना पड़ेगा, दैट्स द की। यस सर। हाँ, आगे बोलो यहाँ पे। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए राहुल, चाहे लिखो ना लिखो Yes, दूसरी बात है, sir. पता होना चाहिए कि कोई चीज हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पढ़ो, नेक्स्ट वाले के लिए बोलो, इसके लिए बोलो 17110 के लिए बोलो। सर 171 इज सिग्निफिकेंट ठीक है, मतलब एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 00 इज मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? 3 सिग्निफिकेंट। आखिरी वाले दो कैसे हो गए? नॉन नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर फाइनल 0। बिकॉज वो लोग फाइनल जीरोस हैं। ठीक है, ओके, आगे ये वाला बोलो 930 के बारे में बोलो। Two numbers are significant, that is 9 and 3, हाँ, while 0 is non-significant because it is final 0. because 0 is not significant because it is final 0। ठीक है राहुल बच्चा, ओके ग्रेट एक्सेलेंट बच्चा, ठीक। एक साथ में हम तो अगर ठीक है, हाँ बोलो। तो अगर इसमें 93.0 होता तो वो क्या होता? आगे आते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारे डाउट्स अपने आप एंड तक आते आते क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ डाउट्स एंड में, क्योंकि डाउट्स अगर बीच में आ रहा है तो हो सकता है ऐसी चीज के लिए हो जो मैं आखिरी में पढ़ाने वाला हूँ, तो हो सकता है क्लास का एंड होते होते अपने आप ही डाउट्स क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा वेट करो, ठीक है? यस ओके ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेट राहुल, सो वील टेक नाउ अमीश विद अस। यस बच्चा, अमीश अगला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। Yes, sir. हाँ पढ़ो। So it says that whenever there is a decimal point, final zeros on the right of the decimal point and the right of the non-zero digit are significant. ठीक है, मतलब देखो इसने एक एग्जांपल दिया है, दो एग्जांपल दिए हैं, 36.00 और उसके बाद एग्जांपल क्या दिया है पढ़ो, 0.3600, यही दिया है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब दोबारा पढ़ो एक बार फिर से उस क्वेश्चन को, फिर से उस पॉइंट को। So whenever there is a decimal point, final zeros on the right of the decimal point and to the right of the non-zero digit. एक मिनट, तो अब इस डेसिमल साइड के दो पॉइंट हो गए, मतलब यही कह रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. एक साइड कौन सा है? Yes, लेफ्ट, और दूसरा साइड कौन सा है? राइट। लिख लिया अपन ने लेफ्ट और राइट, और बीच में क्या आ रहा है? डीपी या डेसिमल पॉइंट। आगे पढ़ो, अब फिर से उस पॉइंट को दोबारा पढ़ो। Whenever there is a decimal point, whenever there is a decimal point, the final zeros on the right of the decimal final zeros on the right, मतलब 36.00 में कौन से वाले जीरोस की बात हो रही है? इनकी, हाँ या ना बच्चा? Yes, sir. की बात हो रही है। अच्छा, ये क्या होंगे? आगे पढ़ो, ये क्या होने चाहिए? क्वेश्चन में क्या कहता है? ये क्या होने चाहिए? They should be are significant. are significant। इसका मतलब अब ये जीरो कैसा हो गया? सिग्निफिकेंट। ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट। Significant, yes. है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, इसमें इस डेसिमल पॉइंट के लिए ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, हाँ या ना? राइट। अच्छा, Left, आगे पढ़ो। Yes, sir. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पढ़ो, टू द राइट ऑफ एंड टू द राइट and to the right of non-zero digit are significant. हाँ, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट में, जैसे यहाँ पर देखो 36 है, 3 और 6 लिखा हुआ है, हाँ या ना बच्चा? Yes. तो अगर इसके Yes, sir. राइट में भी आपको कोई जीरो मिल जाए, इसके राइट में भी क्या मिल जाए?
जीरो। Zero. तो वो जीरो भी कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। वो जीरो भी कैसे Significant. होंगे? सिग्निफिकेंट। ये बात क्लियर है क्या Significant. बच्चा? Yes. अमीश बच्चा, ये बात Yes, sir. क्लियर है? Clear. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल पॉइंट के राइट में कभी भी जीरो मिले तो वो क्या होना चाहिए? Significant. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर मुझे बताना किसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ, एक एक करके यहाँ सबको बताते जाओ। आप शुरू करो इससे। यस, Sir, 3 significant figures. फर्स्ट वाले में बताओ। एक एक करके नहीं, एक एक नंबर बाय डिजिट बाय डिजिट इवैल्यूएशन करो। ये आपका पहला, ये Yes, sir. दूसरा। ये आंसर नहीं देना है आपको, मतलब आंसर देने से पहले सबको समझाना है कि वो आंसर क्यों है वो। ठीक है, ओके। मतलब Yes, sir. यहाँ पे जितने आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट हो रहा है, उससे ज्यादा इस बात का टेस्ट हो रहा है कि आप दूसरों को ये बात समझा पाते हो कि नहीं। राइट? यस, Yes. गेट गोइंग बच्चा, गेट गोइंग। हाँ, Sir, first question में सर दो non-zero digits है 6 and 6. ओके। सर तो वो पहला, दोनों ठीक है, significant हो जाएंगे. इसका मतलब हमने जो पहला रूल पढ़ा था कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। ठीक है, Significant. तो यहाँ पे 6 और 6 दोनों नॉन जीरो है, इसलिए कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये मान लिया, ये Significant. दोनों सिग्निफिकेंट है। ओके, आगे बोलो। Yes, sir. अब ये वाला जीरो So सिग्निफिकेंट decimal. होगा क्या? ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्या? No, sir. क्यों? क्यों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होगा? सर वो पहले आ रहा है. सर वो कोई भी दो non-zero digits के बीच में नहीं आ रहा है और वो पहले आ रहा है, इसलिए वो significant नहीं होगा. ये कहता है कि इस वाले नंबर में, अच्छा एक काम करते हैं, इस तुम इनको इवैल्यूएट करो, उसके पहले जो फिफ्थ पॉइंट है उसको एक बार पढ़ो सबके लिए। यस, पढ़ो। Yes. हाँ, ये वाले sir, क्वेश्चन उसके says बेसिस that- पे सॉल्व होंगे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। So whenever a number starts with a decimal point, the zeros just after the decimal point are not significant. ओके, whenever So that is whenever, फिर से पढ़ो। whenever a number starts with a decimal point, whenever a then number zeros starts just with, after whenever a number decimal starts point, with decimal point, आगे बोलो। then zeros just after the decimal are not significant. zeros Just after the decimal are not significant. just after decimal point are not significant. Not Very significant. important, है ना? Are not significant. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो। अब क्या एग्जाम्पल दिया है उसके लिए? So 0.0034. 0.0034। अच्छा, अब एक्सप्लेन करो इस ये वाला नंबर इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। क्या लिखता है? नंबर को किससे शुरू होना चाहिए? जीरो से। हाँ या ना? Zero. तो नंबर Yes, sir. जीरो से शुरू हो रहा है, और इसके बाद और कितने जीरो आ रहे हैं? दो और जीरो आ रहे हैं। हाँ या ना? तो Yes, sir. इसका मतलब इसमें ये वाले दो जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे सर. नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बार दोबारा से इस पॉइंट को फिर पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 को फिर पढ़ो। So whenever a number starts with a decimal point, zeros just after the decimal point are not significant. So क्योंकि ये वाले दो जीरोस के पहले भी जीरो है और बाद में कोई नॉन, मतलब देखो समझने वाला फंडा ये है कि यहाँ पर हमने समझा क्या है कि कोई दो जीरो कब सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कोई दो जीरो या कोई भी जीरो कब सिग्निफिकेंट हो सकता है? जब वो किसके बीच में है? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। Yes, sir. हाँ या ना? क्या यहाँ पे Yes. ये दो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं? No, sir. नो, राइट? इसीलिए वो कैसे होंगे? इनसिग्निफिकेंट। हाँ या ना? Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? The 2. ठीक है, अच्छा अब यहाँ से शुरू करो कहानी। यस, फर्स्ट। So 6 and 6 are significant. हाँ, ठीक है। क्यों सिग्निफिकेंट? क्यों And significant?
सर क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, और ये वाला आखिरी वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। यस सर, सिग्निफिकेंट होगा। क्यों सिग्निफिकेंट है? सर क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है, हाँ, राइट में। बिकॉज राइट में अगर कोई डेसिमल पॉइंट के जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन यहाँ पे भी तो राइट में आ रहा था, ये वाला जीरो भी तो राइट में था जो हमने देखा पॉइंट सर नंबर। लेकिन उसके पहले भी जीरो था, डेसिमल के पहले भी जीरो था, डेसिमल के कंटिन्यू में जीरो। बिकॉज वो नंबर ही जीरो से शुरू हो रहा था। वेरी गुड, इसीलिए ये दोनों Yes, sir. कैसे हो गए इनसिग्निफिकेंट, जबकि यहाँ नंबर जीरो से शुरू हो रहा है क्या? 6 से शुरू हो रहा है। नो सर, 6 से हो रहा है। हाँ, इसीलिए जीरो कैसा हो गया? सिग्निफिकेंट। बात क्लियर है? सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये Yes, वाला जीरो बोलो, फर्स्ट वाला जीरो, ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं? नो सर, नॉट सिग्निफिकेंट। क्यों? सर क्योंकि वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा। हाँ, बिकॉज ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसके लिए बोलो 3 700 सिग्निफिकेंट के लिए। सर 1। क्यों 1? क्यों? सर क्योंकि वो बाकी के 2 जीरोस ना तो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ना कोई 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है और वही सिग्निफिकेंट है। सो देयर इज जस्ट वन सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस क्वेश्चन। ओके अमीश, वेरी गुड, एक्सीलेंट बच्चा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक आयुष। आयुष, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। एंड आई एम देयर, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं। हाँ बच्चा, बोलो। हाँ सर, 7 सिग्निफिकेंट होगा, आखिरी और फर्स्ट वाला। ये वाला सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होंगे क्या? नहीं सर, वो लोग दोनों नहीं होंगे क्योंकि वो लोग फाइनल जीरोस है। दोबारा सोच लो। नहीं सर, नहीं होंगे। फिर सोच लो। हाँ सर, नहीं होंगे। देखो एक बार दोबारा से यहाँ पर ये वाला रूल पढ़ो, ये वाला रूल पढ़ो, सेकंड वाला। आयुष क्या लिखता है? रूल पढ़ो। All zeros between two non-zero become significant. हाँ, इसका मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या ये 3 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे कि नहीं? हाँ सर, होंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाले जीरोस किसके बीच में आ रहे हैं? ये वाले जीरोस किसके बीच में आ रहे हैं? 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? इसीलिए सबके सब कैसे होने चाहिए? सिग्निफिकेंट। ये सबके सब कैसे होने चाहिए बच्चा? सिग्निफिकेंट। अब काउंट करो कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। हाँ या ना? यस सर। राइट, ठीक है। अब इस नेक्स्ट वाला 6 वाला ट्राई करो। 6 वाला। हाँ सर, 7 और 7 फिर से सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। ठीक है, और ये वाले 2 जीरो वो भी होंगे सर। क्यों? सर पहले तो वो लोग दोनों 2 सिग्निफिकेंट मतलब नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आए हैं। हाँ, और फिर वो दोनों जीरोस डेसिमल के राइट में भी आ रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब जीरोस प्लस द राइट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, और ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए कैसे हैं? सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस नंबर में? बोलो। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ग्रेट। ठीक है बच्चा, ओके। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट वन, महिवेश। यस बच्चा। यस महिवेश बच्चा, आई विल अनम्यूट यू। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, 7.007। एक्चुअली आपके एंड से मुझे आवाज नहीं आ रही है बच्चा, कोई बात नहीं। Sir, 7 and 7 both are significant and the zeros between them are also significant. क्यों है? क्यों है? फर्स्ट, आखिरी और लास्ट वाला क्यों सिग्निफिकेंट है बताओ? Sir, because they are non-zero. Because they are non-zero digits. Very good बच्चा, ठीक है। और इन दोनों जीरो की क्या कहानी है? Sir, they are also significant
because they are between non-zero digits. और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, वो कहाँ लाई कर रहे हैं? टू द राइट ऑफ द डेसिमल, Right to the right of decimal. राइट। लेकिन क्लास अभी So भी there are मैं आप लोगों को सोचने का समय देता हूँ क्लास। 2, 6 और 3 एक बार दोबारा से सोचो, क्योंकि मैंने आपको रूल्स दिए हैं, क्या इन रूल्स के बीच में ही कहीं ये लाई करते हैं या नहीं करते हैं? एक बार और अभी के लिए हम मान लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास फिर से चांस है, आप चाहो तो अपना ऑप्शन बदल सकते हो, मुझे कल दोबारा बताना, ठीक है? ओके ग्रेट। एनीवेज नेक्स्ट महिवेश और ट्राई करो, लास्ट वाला फिर ट्राई करो, 7th वाला। Sir, all of them are significant figures. क्यों? रूल बताओ एक एक के लिए। 7th और Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, both the sevens are non-zero ठीक है and the two zeros are between non-zero digits. ठीक है, इसीलिए चारों कैसे हो गए? सिग्निफिकेंट। Significant figures. अब 8th वाला ट्राई करो, एक एक करके बोलते जाओ शुरू से। ये वाला 7, हाँ बच्चा ट्राई करो। So, seven, the first 5 digits are significant figures. ध्यान से सोच के बोलना एक बार। ये वाला ये 7 सिग्निफिकेंट है, पहले बताओ। फर्स्ट 7 सिग्निफिकेंट है ये? Yes, sir. सिग्निफिकेंट है, क्यों? Sir, non-zero digit. नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब लेट अस टेक, वेरी गुड बच्चा, लेट अस टेक वीरज। हाँ वीरज ट्राई करो, वेरी गुड मयूष बच्चा। हाँ वीरज यहाँ से ट्राई करो। नेक्स्ट वाले 2 जीरो की कहानी बताओ। तो नेक्स्ट 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों सिग्निफिकेंट क्यों होंगे? सर 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। बिकॉज वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं। ऑल राइट, व्हाट अबाउट दिस 7 and 1, आर दे सिग्निफिकेंट बच्चा? यस क्यों सिग्निफिकेंट क्यों है? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बिकॉज ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। आखिरी वाले 2 जीरोस जो पॉइंट डेसिमल के बाद आ रहे हैं, उनका क्या? सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट क्यों है वो? सर जब भी डेसिमल पॉइंट आता है तो जो फाइनल जीरोस होते हैं राइट साइड में, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। राइट, तो हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके बताओ। 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है क्या आंसर बच्चा? बोलो, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको ट्राई करो, आप ये वाला ट्राई करो, एक एक करके बताओ। हाँ करो। ये वाला 7 सिग्निफिकेंट। हाँ वीरज बच्चा, ये 7 सिग्निफिकेंट है क्या? ठीक है, ये वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट है क्या? ये और ये? ठीक है, क्यों है? बिकॉज वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये 7 भी सिग्निफिकेंट है। क्या ये वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट हैं वीरज? एक बार जोर से बोलो वीरज, तुम्हारे यहाँ पे शायद कुछ नेटवर्क इशू है, जोर से बोलो फिर से। ओके कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। आई थिंक आपने सही बोला है, बट मे बी आई एम नॉट एबल टू हियर इट बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। लेट अस सी इफ थैंक यू, गुड बच्चा, गुड। लेट अस टेक नाउ आंसर्स फ्रॉम कुशल। यस कुशल। यस सर। ट्राई, ये आखिरी वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट हैं क्या? वीरज इज सेइंग कि लास्ट वाला, वीरज इज सेइंग कि लास्ट वाले 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसे ही होगा क्या? नहीं, यस सर। क्यों सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है कुशल?
सर क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अच्छा, कुशल, मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, उनको भी सॉल्व करो। अब मैंने एक नंबर दिया है यहाँ सर पर। मेरे को एक डाउट है। हाँ, बोलो बोलो। सर अगर 70.00 लिखेंगे तो फिर उसका क्या होगा? दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे अपने आप डिस्कशन होगा। ये देखो, we'll take that 70.00, we'll take that up। ये बताओ, अगर हमारे पास ये नंबर है 43 और लेट्स से 43215, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सर 5। 5, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोलना 35.00। 4 क्यों 4 क्यों? एक एक करके बताओ सबका सिग्निफिकेंस। क्योंकि 3 और 5 नॉन जीरो है ठीक है, और जो 2 जीरो आ रहे हैं वो डेसिमल के बाद हैं, ठीक तो है, फिर उनको देंगे। राइट। अच्छा, एक और नंबर देखो 0.077, इसके बारे में बोलो कुछ। सर इसमें 2 आएंगे, 7 और 7, क्यों क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले 0 है और उसके बाद वाला 0 हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है। बिकॉज डेसिमल के जब भी कौन से वाले पॉइंट को फॉलो कर रहे हो? फिफ्थ वाले पॉइंट को, हाँ या ना? कि नंबर किससे शुरू हो रहा है? 0 से, हाँ या ना? 0, यस सर। ठीक है, तो अब उसके बाद बताओ, ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट होंगे क्या? सॉरी, ये दोनों 7 और 7 सिग्निफिकेंट होंगे क्या? हाँ, राइट। यस सर। अच्छा, ये वाला 0 इनसिग्निफिकेंट क्यों है, जिसको मैंने मार्क किया अभी? सर क्योंकि डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है। ठीक है, बिकॉज डेसिमल 0 से शुरू हो रहा है, वेरी सिंपल एज दैट, है ना? जब भी आपका नंबर 0 से हो, तो उसमें अगर आपके पास, या देखो, whenever a number starts with a decimal point या 0 से शुरू होता है, तो zeros just after the decimal point या to the right of the decimal point are not significant। इसीलिए कैसा हो गया? Not significant। इसीलिए हमारे पास जो significant numbers हुए या जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, कितने हो गए? 2 इन दिस केस, 7 और 7, ठीक है। अच्छा, अब एक और बोलना 6000, इसमें बताओ कुशल। सर 1। क्यों? सर क्योंकि नॉन जीरो के बाद के जीरोस काउंट, सॉरी, नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरोस काउंट नहीं होते। बिकॉज ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए सिर्फ कौन सा सिग्निफिकेंट हो गया? 6, राइट? 6, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे सवाल पे आते हैं। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में जो एंड हो रहा है वो 2 जीरो से हो रहा है। कौन कौन से लॉज लगाओगे? एक एक करके लगाते जाओ। सबसे पहला लॉ लगाओ, या सबसे पहले आप रूल्स यूज करो फॉर दिस 7 करो। हाँ, बोलो। 7 सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो नॉन जीरो है। बिकॉज वो नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट वाले 0 के बारे में सोचो। सर नहीं होना चाहिए। सोचो। नहीं पता। देखो, जब भी कभी, अच्छा मुझे ये बताओ, जब रीडिंग ली गई होगी, तो अगर 0 आखिरी में लिख दिया गया है, 0.00, इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब जैसे अगर आपके पास यूनिट के जो भी, सपोज आपने स्केल ली है, वो स्केल सेकंड डिजिट तक मेजरमेंट कर सकती है, हाँ या ना? डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट तक मेजरमेंट कर सकती है। जैसे आपने अगर पेट्रोल पंप पे कभी पेट्रोल भराया है, तो देखा है वहां पर ऐसे काउंटिंग होती है, 52.60 या फिर 70.00 या फिर 100.90। ये देखा है कभी कुशल? पेट्रोल पंप पे जहां पर अपन पेट्रोल भरवाते हैं, उस जगह पर जब
पेट्रोल का प्राइस आता है तो इस तरह से दिखता है, ये देखा है कभी कुशल? ये ध्यान दिया? यस यस है ना? सर, तो वहां यस पर सर। इसका क्या मतलब है कि जो भी मशीन आपका कैलकुलेशन कर रही है पर लीटर पेट्रोल का जो भी दाम है या जो भी रेट है, उसके हिसाब से जो भी मशीन कैलकुलेशन कर रही है वो किस डिजिट तक कर रही है, किस डिजिट तक कर रही है कुशल? 2 सेकंड डिजिट तक, डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट तक, ठीक है? तो इसका मतलब ये दोनों जो जीरोस हैं वो होने कैसे चाहिए? सिग्निफिकेंट, हाँ या ना? सिग्निफिकेंट, आया यस ना? क्योंकि उन डेसिमल नंबर्स यस तक उन डेसिमल नंबर्स तक मेरा मेजरमेंट हो रहा है, होने तो चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्लास जैसे मैंने आपको 2, 3 और 6 ये जो 3 होमवर्क दिए हैं, इनके साथ साथ अब ये वाला नंबर जो अभी अभी कुशल हैज गिवन टू एवरीवन, ये होमवर्क लो, है ना? अच्छा कुशल, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि 7 के बाद के 3 जीरो सिग्निफिकेंट होने चाहिए या नहीं? By listening to my argument and reading these rules, एक बार दोबारा खुद सोचो, take a minute, think about it. सर, नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट। So actually the point is चलो मैं यहाँ पे राज नहीं खोलता हूँ, I want you all to think, जैसे मैंने ये 3 नंबर्स के लिए कहा है ना, 2, 6 and 3, ये भी होमवर्क लो सभी लोग। My point of view may be different, है ना, from everybody's point of view right now, but the best thing would be जो अपन ने रूल्स अभी अभी पढ़े हैं, इन रूल्स को यहाँ लगाने की कोशिश करना। एक रूल वो भी है जिसकी मैंने अभी बात की, क्या कि जिस वैल्यू तक मेजरमेंट लिया जा रहा है, जिस वैल्यू तक मेजरमेंट लिया जा रहा है, वो मेजरमेंट या वो वैल्यू ली ही इसीलिए जा रही है ताकि सिग्निफिकेंस के बारे में कहा जा सके। मतलब अगर मैं कोई वैल्यू कहता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ 60.80, तो यहाँ पर बताओ कुशल, 8 और 0 में 0 सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि नहीं? यस क्यों सिग्निफिकेंट क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरोस काउंट करते हैं। हाँ, और क्यों उनके काउंट करते हैं? क्यों काउंट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछो सर, क्यों काउंट करते हैं ये बताओ। डेसिमल के बाद के जीरो क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो रीडिंग ली है, कुशल ध्यान से सुनना, जो हमने रीडिंग ली है वो रीडिंग सेकेंड डेसिमल प्लेस तक ली गई है। मतलब हमारी जो एक्यूरेसी है, या उससे भी बेहतर शब्द है हमारा जो प्रिसेशन है, वो कहां तक है? सेकेंड डेसिमल प्लेस तक है। कुशल रिपीट करो मैंने क्या कहा, द प्रिसेशन ऑफ द रीडिंग is still second decimal place. इसको रिपीट करो। the precision of the हाँ, the precision of the measurement is still second digit of decimal number place. बोलो, still second digit of decimal place. is still second digit of decimal place. हाँ, हमें ये याद रखना है क्लास, सभी लोग इस पॉइंट को लिखो अपने पास। प्रिसेशन का मतलब होता है कि कितने प्रिसाइसनेस के साथ आप कोई मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप जितने हाईएस्ट डेसिमल पॉइंट तक किसी भी वैल्यू को लिख सको, वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। So we are introducing a word called precision to all of you. We are introducing a word called precision to all of you. है ना? Okay. तो होमवर्क लिखो सभी लोग। 700.007, 7.007, right? I think I have repeated these two, right? Okay, ठीक है। So we'll take this then 70.00. ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में प्लीज मुझे इनिशियली रिमाइंड कराइएगा कि we need to take this up as the solution. ठीक है कुशल? Yes sir. Okay, great. बाकी क्लियर है सबको? जो भी हमने बाकी सब पढ़ा क्लियर है? आई थिंक राहुल आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, चैतन्य आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, लोग पूछो। सर, हाँ बोलो। सर मेरे को भी डाउट है। पूछो। सर वो प्योर नंबर वाले एक और बार समझा देंगे? जो भी नंबर जिसमें यूनिट नहीं आता उसको प्योर नंबर कहते हैं, वन थिंग, और माना जाता है कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट, सिंपल। यहाँ पर देयर इज नो यूनिट, और ऐसा कहते हैं कि जब भी यूनिट ना हो तो उस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। ओके सर, क्लियर है? So this is the number of significant figures. Number of significant figures. ठीक है? क्लियर है बच्चा कुशल?
Yes, sir. This is one of the rules. This is one of the rules, right? ठीक है. So क्लास एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करता हूँ, राइट? सो टेक इट अप. ये पॉइंट देखो सभी लोग. ये पॉइंट है अबाउट, वी आर टेकिंग योर क्वेश्चंस, डोंट वरी. ठीक है, वी आर टेकिंग योर क्वेश्चंस, डोंट वरी. तो ये होमवर्क लिखो सभी लोग. फिर एक छोटा सा पॉइंट है अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. लिखो सब लोग. 2 रूल्स रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सब लोग लिखेंगे. बहुत सिंपल रूल है लेकिन बहुत यूजफुल है, राइट? सभी लोग रूल लिखो. पहला डिजिट, पहला इसके भी पहले एक चीज होती है राउंडिंग ऑफ. एक चीज होती है राउंडिंग ऑफ, है ना? तो सपोज हमारे पास एक नंबर है, राइट? तो लेट्स से वी हैव अ नंबर 5.679. ठीक है, ये इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? लेट मी टेक दिस एज अ कॉन्वर्सेशन विद राहुल. राहुल बच्चा, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बताओ. सो आई एम अनम्यूटिंग यू. एक, हाँ बच्चा, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि यू हैव टू राउंड इट ऑफ. यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू सेकंड डेसिमल प्लेस. अभी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हम क्या करेंगे, अगर जो लास्ट वाला नंबर है, यानी कि जो थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो नंबर है, अगर वो 5 से बड़ा है, कैसा है राहुल? 5 से बड़ा. तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को जो उसके एक पहले है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे और आखिरी वाले नंबर को हटा देंगे. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5.68. क्या लिखेंगे राहुल? 5.68. 5.68. मतलब आखिरी वाला डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन हम क्या करेंगे, उस डिजिट को रिमूव कर देंगे. देन रिमूव द लास्ट डिजिट और बेसिकली थर्ड डिजिट, है ना, एंड इंक्रीज digit before it by 1. Increase digit before it by 1. ये बात क्लियर है क्या बच्चा? यस सर. ठीक है, एक और. सपोज ये हो जाता अगर 5.672. अब क्या करते हैं? तो 5.67 ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि 2 5 से छोटा है. तो अब अगर लास्ट डिजिट, रूल लिखो सब लोग, अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा है, एवरीवन, if last digit is less than 5, then हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते हैं. like always, remove the last digit. और क्या कर रहे हैं राहुल? we are letting this digit as such, मतलब 5.67 को जस्ट का तस रहने देते हैं. ये बात क्लियर है क्या राहुल? यस सर. यस सर. अच्छा, अब एक और रूल है. रूल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया 5 से कम और 5 से ज्यादा, लेकिन अगर हमारे पास जो आखिरी डिजिट है, सपोज वो 5 ही है ना, वो 5 से बड़ा है तो 5 से छोटा है, राइट? सो लेट्स से दिस इज 5. और हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज 5.685. ठीक है, अब 2 एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, अब बताओ राहुल, अब क्या होना चाहिए? अब हमारे पास इसके लिए रूल ये है कि अगर जो 5 के पहले जो डिजिट है, राइट, अगर वो 5 के पहले जो डिजिट है, अगर ये ऑड है, कैसा है राहुल? ऑड है. देन हम क्या करते हैं, 5 को रिमूव करते हैं और आंसर लिखते हैं 5.68. कैसा लिखते हैं राहुल? 5.68. लेकिन अगर ये डिजिट इवन है, इसके पहले वाला डिजिट कैसा है? इवन. कैसा है राहुल? इवन. तो अगर ये इवन है तो 5 को तो रिमूव करते हैं, लेकिन उसको कैसा रहने देते हैं? विदाउट एनी चेंज. कैसे रहने देते हैं राहुल? विदाउट एनी चेंज. क्लियर है क्या ये बात? यस सर. विदाउट एनी चेंज. और यहाँ पर वी इंक्रीज बाय
1 डिजिट Yes, sir. इंक्रीज। ठीक है, लिखा सबने क्लास? राहुल नोट डाउन किया इसको अपने पास? तो जस्ट अ सेकंड, बस दो लास्ट के 2 पॉइंट कर लो कर लो कर लो, सभी लोग इसे नोट डाउन कर लो बच्चा लोग अपने पास। अच्छा सभी लोग एक बार हैंड डाउन करेंगे, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ से अभी किसी की क्लास है क्या एट 3 o'clock? सो प्लीज रेज योर हैंड। In case if now anybody has class at 3 o'clock, please raise your hand. If anybody has class at 3 o'clock, please raise your hand. Okay, ठीक है, ठीक। सबने लिख लिया? In case you have written it down, raise your hand. We'll take up your questions. We are taking your questions. Don't worry. ठीक है? Right. जिसने लिख लिया है, जो भी अभी आज हमने क्लास में अभी पढ़ा और जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। रेज योर हैंड इफ यू आर डन राइटिंग। यस क्लास। चैतन्य, आयुष, एवरीवन, जैसे ही हो जाए हैंड रेज करो, लेट मी नो। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा 1 मिनट रूल है, ये देखना सब लोग, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, राइट, जब भी किया जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी किया जाए, तब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे डील करते हैं। क्लास आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो राइट, सपोज हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, सो सपोज अब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से वी आर मल्टीप्लाइंग 5.80 into 6.953। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से वीरज, वीरज एक बात बताओ, यहाँ पर पहले वाले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यस वीरज। तो फर्स्ट वाले में 2, फर्स्ट वाले में 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 हैं क्या? चेक कर लो एक बार। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि अगर डेसिमल पॉइंट से शुरू होता है नंबर, तो जितने भी जीरोस डेसिमल के राइट में होते हैं वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट। हाँ या ना? राइट। yes sir, तो ये वाला आखिरी वाला कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। कैसा हो जाएगा राहुल, कैसा हो जाएगा वीरज? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए? 3। अच्छा, इसमें बताओ, नेक्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से कोई भी एक रैंडम वैल्यू आती है, राइट? तो लेट मी सी, वील हैव द वैल्यू एज, so we are taking 5.80 and 6.953, so we get the answer as 4 point or 40 point, we get the answer as 40.3274। ठीक है? तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो तो कितने आ रहे हैं इस नंबर में? हाँ वीरज,
1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ या ना? यस सर। है ना, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर परमिसिबल नहीं है। जब भी कभी आप दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, दैट इज व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स और डिवाइड वन नंबर बाय द अदर, राइट, व्हेनेवर यू डू दैट, जो फाइनल आंसर आया उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने इन दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास हैं। बताओ इन दोनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं? 5.80 के पास है। और कितने हैं वो? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 5.80? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? कितने होने चाहिए बच्चा बोलो? आउट ऑफ दीज टू लीस्ट कौन सा है? 3। हाँ या ना? यस सर। तो अब 3 के लिए आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे? 3 के लिए इसमें राउंड ऑफ कर दोगे। इसका मतलब फोर्थ वाले नंबर को देखो, फोर्थ नंबर कौन सा है वीरज? 2। तो जो फोर्थ नंबर 2 है, ये 5 से छोटा है कि 5 से बड़ा है? तो छोटा है। 5 से छोटा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए? यहाँ देख के बताओ, जब भी डिजिट 5 से छोटा होता है तब क्या करते हैं? सिर्फ उसको रिमूव कर देते हैं। हाँ या ना? है ना? तो इसका मतलब 2 और उसके बाद जो भी है इसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो आंसर क्या आ जाना चाहिए? 40.3। क्लियर हुआ? अब 40.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे बताओ? 3। हाँ या ना? क्लियर हो रहा है? Yes. एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब क्वेश्चन है और इसको महिविश सॉल्व करेगी, तो महिविश टेक दिस क्वेश्चन। गुड बीरज, गुड। So Mahevish, let's say you have a question 1.568 divided by 3.1. Suppose the answer comes out to be, let me tell you. So let's say we have 1.568 divided by 3.1. Answer आता है, answer is a very big number. Let's take some digits of it. We have answer 0.05080. 0.05080. अच्छा, अब यहाँ पे दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ बच्चा। हाँ महिविश बच्चा बोलो। यस बच्चा बताओ। सर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट ठीक है, ठीक है। 3.1 में कितने हैं? 3.1 में यहाँ पे 2 है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ अबाउट दिस वैल्यू? इसमें आप बताओ अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? काउंट करो सर 4। कौन कौन से? 5 4 0 8 0। अच्छा, ये वाले दो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है सर? बिकॉज ये 5 के पहले वाले 0 नॉन 0 के बीच में नहीं है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रूल पढ़ो, व्हेनेवर अ नंबर स्टार्ट्स विद अ डेसिमल पॉइंट, जो जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं? इनसिग्निफिकेंट। हाँ या ना? राइट? इसीलिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के ठीक बाद वाला 0 यानी कि ये कैसा हो गया? इनसिग्निफिकेंट। और ये वाला 0 क्योंकि दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भी कैसा हो गया? इनसिग्निफिकेंट। हाँ या ना बच्चा? राइट? यस सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अभी? 4। हाँ या ना? यस सर। लेकिन होने कितने चाहिए? लीस्ट ऑफ द टू। लीस्ट ऑफ द टू। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, क्योंकि जिन दो नंबर्स की वजह से ये नंबर आया है उन दोनों में से लीस्ट किसके पास है? जिसके पास भी लीस्ट 3.1। राइट, एंड दैट इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट बच्चा? तो इसीलिए हमको यहाँ पर राउंड ऑफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना पड़ेगा?
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, हाँ या ना? 2 significant. राइट? Yes, तो sir. इसका मतलब ये देखो, ये वाला पहला सिग्निफिकेंट फिगर 5, तो ये है दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर 0, हाँ या ना? हाँ या ना? Right, sir. तो इसका Yes, मतलब sir. अब मैं जैसे ही यहाँ से नंबर्स हटाना शुरू करूंगा या राउंड ऑफ करूंगा, तो बताओ 8, जो 8 हटा रहा हूँ, ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? Sir, 5 से बड़ा है. अगर 5 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके पहले वाला जो 0 है, इसको मैं ग्रेटर देन 1 कर दूंगा या रहने दूंगा 10 का 10? यहाँ देखो, जब नंबर 5 से बड़ा होता है और जब हम उसको रिमूव करते हैं तो उसके पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देते हैं या जैसा 10 का 10 रहने देते हैं? सर बढ़ा देते 1 से बढ़ा हैं. राइट. तो हम यहाँ पे जैसे ही 8 को रिमूव करेंगे और ये हमारा नंबर 0.05 और 8 रिमूव हो गया, तो कैसा हो जाएगा बोलो? यहाँ पर 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 1 1 आ जाएगा. 1. वेरी गुड. अब बताओ इस 0.051 में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2. 2. और ये 2 इन दोनों में से कैसा है? लीस्ट का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छे से क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Clear. ठीक है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थैंक यू Mahevish, थैंक यू. Last one rule which comes to addition and subtraction of two decimal numbers. Addition and subtraction of two decimal numbers. Let us take this from Chaitanya. ठीक है. तो चैतन्य एक बात बताओ, ठीक है? Yes, sir. बताओ कि अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है, ठीक है, नंबर है 7.786 प्लस 5.2, तो इसका आंसर आता है, we'll have the answer as 7.786 plus 5.2 is giving Sir, 12. हाँ बोलो बोलो. 12.986. 12.986. ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया. ओके ग्रेट. अब मुझे बताओ कि दोनों में डेसिमल पॉइंट कितने हैं? यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं? सर 3 डेसिमल पॉइंट्स हैं. यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट्स हैं? सर 1 डेसिमल पॉइंट है ना? अच्छा, यहाँ कितने डेसिमल पॉइंट आ गए? सर यहाँ 3. हाँ, तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसको कॉन्सेंट्रेट किया था? सिग्निफिकेंट फिगर्स को. किसको कॉन्सेंट्रेट किया था चैतन्य? सिग्निफिकेंट फिगर्स को. राइट, यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं डेसिमल पॉइंट को. किसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं? डेसिमल पॉइंट को. जैसे हमने यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिया था, यहाँ पर हम क्या लेते हैं? लीस्ट डेसिमल पॉइंट. क्या लेते हैं बच्चा? लीस्ट डेसिमल पॉइंट. बताओ यहाँ पर लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितने हैं? 3 है या 1 है? सर 1 है. तो अगर 1 है, इसका मतलब मुझे इस 12.986 के डेसिमल पॉइंट को कितना करना पड़ेगा? बोलो कितना करना पड़ेगा? 1. सर 1 ना? तो अच्छा, इसको 1 yes, करो. कैसे करोगे? इसका मतलब आपको इसको राउंड ऑफ करना है. आपको इसको राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, हाँ या ना बच्चा? yes, हाँ या ना? ठीक है. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस करने के लिए क्या हटाना पड़ेगा मुझे? 8 से हटाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर. तो अगर 8 हटाओगे तो मेरे पास नंबर क्या आ जाना चाहिए? ये वाला नंबर 1 से बढ़ना चाहिए या 1 से घट जाना चाहिए? 1 से घटना चाहिए. बढ़ना चाहिए. क्यों बढ़ना चाहिए? क्यों? क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर. तो अब क्योंकि 9 यस सर 8 इज ग्रेटर देन 5 है ना, तो जैसे आप 9 को 1 से बढ़ाओगे तो अपने आप कैसा हो जाएगा? 10 या फिर हो जाएगा 0.1 है ना? तो 10 इसका मतलब कैरी ओवर होके आंसर कितना हो जाएगा? 13.0. 13.1 13.0. यस सर. यस सर. सॉरी, क्लियर हुआ ये आपको बच्चा एकदम अच्छे से? यस सर. तो अब कितने डेसिमल प्लेस बचे बताओ? 13.0 में कितने डेसिमल प्लेस है? सर 1 डेसिमल प्लेस है. क्लियर हो गया क्या चैतन्य? यस सर. एक्सप्लेन करो कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तब क्या करते हैं, और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तब क्या करते हैं? हाँ बच्चा बोलो.
सर जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तब हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के लीस्ट नंबर को हम राउंड ऑफ करके आंसर लेके आते हैं, और जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हम लीस्ट डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ करके एक आंसर लेके आते हैं। बिल्कुल सही बच्चा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है बच्चा, सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे। आप लोगों में से जिन जिन बच्चों को डाउट्स हैं, है ना, वो कल की प्रैक्टिस क्लास में पूछेंगे। तो हमारे लिए कल एक प्रैक्टिस क्लास है, सेम टाइम, राइट, 1 o'clock से प्रैक्टिस क्लास होगी, राइट। वील ट्राई टू फिनिश इट अर्ली इनफ बाय 2 o'clock itself, राइट। तो कल की प्रैक्टिस क्लास में हमने जो आज पढ़ा है हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों के कुछ डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। प्लस हम लोग एक दो और नए कॉन्सेप्ट ताकि हमारा ये चैप्टर अपने फिनिशिंग लाइन पर आ सके, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, कल प्रैक्टिस क्लास है, जस्ट 1 मिनट बच्चा, कल हमारी प्रैक्टिस क्लास है बच्चा लोग। प्लस आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं हम उनका क्लियरेंस करेंगे कल की क्लास में, राइट। जो भी आज की क्लास से डाउट्स हैं, राइट। प्लस एट द सेम टाइम हम क्या करने वाले हैं, एक या दो नए कॉन्सेप्ट लेंगे, राइट। So this is your timing for practice class tomorrow in the afternoon, right? Thank you everyone. Thank you for being a part of the class. Let us meet tomorrow in the afternoon at 1 p.m, right? 1 or 2 new concepts, doubt clearance and majorly practice of the concept, right? ठीक है बच्चा लोग, thank you everyone for being in the class. Thanks a lot. Yes class. Thank you very much. सर हाँ बच्चा, पूछो बच्चा, पूछो। सर तो कल के क्लास में आप मेरे को वो जो कॉन्सेप्ट बचा था टू डिराइव द रिलेशन, टू डिराइव द क्वांटिटीज इन अदर क्वांटिटीज, आप वो कल समझा दोगे मेरे को? एक मिनट बच्चा, एक मिनट, जस्ट लेट मी। बच्चा मैंने आपको जैसा बोला था ना, ऑल दीज वीडियोस विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सेस, तो वहां से आप देख लेंगे, ठीक है बच्चा। फिर जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सर कहाँ से? I'll tell you. कहाँ से? Don't worry. I'll tell you the link on the group. Don't worry, बच्चा. Okay. Thank you, sir. Okay, great. Thank you, everyone. Thanks a lot. Let us catch up tomorrow in the afternoon. Thank you very much, बच्चा. ये पेज लिख लिया है सबने? Has everyone written this down? In case yes, please raise your hand, बच्चा लोग. Yes, sir. लिख लिया. बच्चा लोग अगर ये पेज आपने लिख लिया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके बच्चा लोग, थैंक यू एवरीवन। आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल में लॉग आउट, राइट। जिन जिन ने लिख लिया है वो लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।